হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইনার ফ্যামিলি ব্লগস। তোমরা সবাই কেমন আছো? আই হোপ তোমরা যে যেখানে আছো সবাই খুব ভালো আছো অ্যান্ড সুস্থ আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি, দেখে বুঝতেই পারছো। আর সকাল সকাল আবার আরেক জায়গায় চলে আসলাম। কোথায় আসলাম তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো, যারা এসেছো এই জায়গায়। আর যারা আসুনি এখনও তারা আমার সাথে চলো। আমি আজ কোথায় এসেছি তোমরাও আমার সাথে ঘুরতে থাকো। আমি কোথায় কোথায় ঘুরি তোমরাও আমার সাথে ঘোরো। তো বুঝতেই পারছো আমি কোথায় এসেছি। যারা এখানে এসেছো তারা তো অবভিয়াসলি বুঝে যাবে, আর যারা এখনও আসেনি তারা গেস করো কোথায় এসেছি। গেস করতে হবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কোথায় এসেছি। সো হ্যাঁ, আমি এসেছি আজকে সায়েন্স সিটি। সায়েন্স সিটিতে এসেছি আজকে আমরা ঘুরতে, দিদি শুদ্ধ। মা আসেনি, মা বাড়িতে, মার শরীরটা ভালো না বলে মা আসেনি, তো আমরাই এসেছি। তো এই যে হলো সায়েন্স সিটি। তো তোমরা জানোই এখানে কি কি আছে। দেখো, টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বাবাই আর দিদি। সো আমরা ভেতরে ঢুকে গেছি। তো চলো দেখো এখন আমরা কোথায় যাই, কোথায় কোথায় ঘুরি। তোমরাও আমার সাথে চলো, যারা দেখোনি তারা আমার সাথে দেখে নাও। সায়েন্স সিটি, আমাদের কলকাতা সায়েন্স সিটি অনেকেই এসেছে, বেশিরভাগ লোকই সায়েন্স সিটি গেছে, বাট আমি আসিনি কোনোদিন, আমি ফার্স্ট টাইম গেলাম, ভাবা যায়। তো চলো দেখি কি আছে, কি দেখা যায়। দেখতে থাকো, সাথে থাকো, চলো আমার সাথে তোমরাও। দেখো, বাবার মেয়ে আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। আমার মেয়ে তো ভীষণ এনজয় করছে, এত খোলামেলা জায়গা, এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, গাছপালা দেখে আমার মেয়ে ভীষণ খুশ হয়ে গেছে। ও কোলে উঠবে না, তো পাপার সাথে হেঁটে হেঁটে যাবে। ভীষণ এনজয় করছে, ভীষণ এনজয় করছে। তো দেখো, এই যে এই সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলটা বন্ধ আছে, তাই এখানে ঢুকতে পারলাম না, ঢোকা হলো না। নেক্সট টাইম যদি আসি তখন ঢুকবো। তো তোমরাও দেখতে পেলে না এই সায়েন্স এক্সপ্লোরেশন হলে কি আছে। তো আবার যখন আসবো তখন তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো চলো আগে দেখি কি আছে, সেখানে তোমাদেরকেও নিয়ে যাচ্ছি, চলো দেখতে থাকো। এই যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে মেয়ে, বাবা, দিদিভাই, মেয়ে, দিদিভাইয়ের ছোটো মেয়ে, আমি আর দিদিভাইয়ের বড় মেয়ে পেছনে ভিডিও করতে করতে যাচ্ছি, ভাবা যায়। তো চলো দেখতে থাকো। फर्स्ट टाइम बना था क्या? साउंड सुन रही है? দেখেছো মাম্মা এগুলো কি? হুম হুম ওবারে কি করছো? পড়াশোনা করছো? হ্যাঁ, ঘুরে গেছে। ওটাই ঘুরে মারবে। ওই
দেখো আমরা এসে গেছি এখন হিউম্যান ইভলিউশনে। সো তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো যারা এখানে এসেছো, তো যারা আসোনি তাদেরকে বলছি, সো প্লিজ 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 খুব মন দিয়ে অ্যান্ড খুব ভালো করে দেখো, কেন কি এখানে কিছু কাহিনী এখন আমাদেরকে শো করবে অ্যান্ড দেখাবে অ্যান্ড শো করবে। সো প্লিজ তোমরা মন দিয়ে দেখো অ্যান্ড শোনো, আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। সাউন্ডটা একটু কম হবে, বাট বাড়িয়ে দিয়ে শোনো প্লিজ। आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद की है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया। आगे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्मित उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा मुड़ना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो, 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को, हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं, उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम नहीं होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए, जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें
मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइडेलबर्गेंसिस या हाइडेलबर्गमैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के भाले में। एवोल्यूशन यानी उत्विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैल गए। होमो हाइडेलबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो निएंडरथालेंसिस यानी निएंडरथॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास निएंडरथॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। निएंडरथॉल की जीवाश्मिक हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। निएंडरथॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। वे यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रही। हमारे पास साक्ष्य हैं कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर निएंडरथॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे निएंडरथॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, हार्पून और भी किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूल्हों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूह में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी। उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवर होता है। ये होमो सैपियंस के लिए एक बड़ा सवाल था। 1 लाख साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल वैसे ही
हमें सबूत मिले बुनी हुई टोकरियों के। औजार और हथियार बनाने के लिए धातु कार्य भी प्रचलित था। সায়েন্স সিটি পার্ট 1 তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করো, যদি ভালো লেগে থাকে ছোট্ট করে লাইক করো। চলো বাই।